جب ہم کہتے ہیں اللہ کا کام تو اس کا مطلب کسی ایک گھٹنا سے نہیں ہوتا۔ یہ پوری کائنات کا چلنا، دلوں کا بدلنا، حالات کا پلٹنا، سب اسی کے حکم سے ہے۔ اسلام کے مطابق ہر چیز ایک مقصد اور حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن بار بار یاد دلاتی ہے کہ اللہ بیکار کچھ نہیں کرتا۔ جو ہمیں اتفاق لگتا ہے وہ اس کے علم میں پہلے سے درج ہوتا ہے۔ سب کچھ جاری ہے، ہر پل، ہر سانس، ہر بدلاؤ اسی کے ارادے سے جاری ہے۔ سورج کا روز اگنا اور ڈھلنا جاری ہے، چاند کا گھٹتے بڑھتے رہنا جاری ہے، موسموں کا بدلنا جاری ہے، بیج کا مٹی میں دفن ہو کر پیڑ بن جانا جاری ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی جاری ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، سب ایک طے شدہ سلسلہ ہے۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم، لیکن دونوں ٹھہرتے نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کا کام صرف بڑی گھٹناؤں میں نہیں دکھتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جاری ہے۔ دل میں اچانک سکون اتر آنا، یہ بھی اس کا کام ہے۔ کسی اجنبی کا صحیح وقت پر مددگار بن جانا، یہ بھی اس کا کام ہے۔ گر کر پھر کھڑے ہو جانے کی طاقت ملنا، یہ بھی اس کا کام ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ بکھر گیا، لیکن پیچھے سے ایک اور سلسلہ جاری ہوتا ہے، تیاری کا، صبر کا، سیکھ کا۔ اللہ کا کام ہمیشہ شور میں نہیں ہوتا، اکثر خاموشی میں جاری رہتا ہے۔ رات جب گہری ہوتی ہے تب بھی دھرتی اپنی رفتار سے گھومتی رہتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے اندھیرا ٹھہر گیا ہے، لیکن صبح کی تیاری جاری رہتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو اندر ہی اندر ایک مضبوطی کا کام جاری رہتا ہے۔ صبر بن رہا ہوتا ہے، تجربہ بڑھ رہا ہوتا ہے، ایمان گہرا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت بیکار نہیں جانے دیتا۔ ہر آنسو درج ہے، ہر دعا سنی جاتی ہے، ہر کوشش لکھی جاتی ہے۔ جو چیز آج سمجھ میں نہیں آتی، کل اس کا مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ جو دروازہ بند ہوتا ہے، کہیں اور کوئی راستہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کام رکتا نہیں، اگر ایک راستہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ اگر ایک رشتہ دور ہوتا ہے تو کوئی نئی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ دیتا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی دیر کرتا ہے، لیکن ہر حال میں اس کا کام جاری رہتا ہے، حکمت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ انسان کا کام ہے بھروسہ جاری رکھنا، دعا جاری رکھنا، شکر جاری رکھنا، صبر جاری رکھنا، کیونکہ جب انسان اپنی طرف سے کوشش جاری رکھتا ہے تو اوپر سے رحمت بھی جاری رہتی ہے۔ اللہ کا کام کبھی ادھورا نہیں ہوتا، جو شروع ہوتا ہے وہ کسی مقصد تک ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر آج حالات سمجھ میں نہیں آ رہے تو گھبراؤ مت، سلسلہ جاری ہے، حکمت جاری ہے، رحمت جاری ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو تمہیں خود محسوس ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب بیکار نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا کام ہی تھا۔ اللہ کے پیغام، رحمت، انصاف اور ہدایت کی روشنی۔ اللہ کے پیغام کا مطلب ہے وہ سندیش جو انسان کو اس کی اصل پہچان، اس کے مقصد اور اس کے راستے کی یاد دلاتے ہیں۔ اسلام کے مطابق یہ پیغام سب سے مکمل روپ میں قرآن میں نازل ہوئے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچے۔ لیکن اللہ کے پیغام صرف کتاب کے پنوں تک سیمت نہیں، وہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر احساس میں، ہر سیکھ میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک، پہلا پیغام توحید، ایک ایشور کا یقین۔ سب سے بنیادی سندیش یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ انسان کو اندر سے آزاد کرتا ہے، ڈر سے، جھوٹی امیدوں سے اور انسانوں کی غلامی سے۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میرا رب ایک ہے اور وہی کافی ہے تو انسان کا بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دو، دوسرا پیغام رحمت، کرونا اور معافی۔ اللہ خود کو رحمان اور رحیم کہتا ہے، یعنی بے حد مہربان۔
हर गलती के बाद तौबा का दरवाज़ा खुला है। यह पैगाम हमें सिखाता है, दूसरों को माफ़ करना, खुद को सुधारने का मौका देना, उम्मीद कभी न छोड़ना। रहमत का मतलब यह नहीं कि इंसाफ खत्म हो जाए, बल्कि यह कि इंसाफ के साथ नरमी भी हो। तीसरा पैगाम, इंसाफ, न्याय और संतुलन। अल्लाह का एक नाम अदल, न्याय करने वाला भी है। पैगाम यह है कि किसी पर जुल्म मत करो, कमज़ोर का हक मत छीनो, सच का साथ दो, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों न हो। इंसाफ जिंदगी को संतुलन देता है, रहमत उसे खूबसूरती देती है। चौथा पैगाम, सब्र और शुक्र। जब हालात मुश्किल हों, सब्र, जब नेमतें मिलें, शुक्र। यह दो शब्द पूरी जिंदगी का निचोड़ है। सब्र इंसान को टूटने से बचाता है, शुक्र उसे घमंड से बचाता है। पांचवा पैगाम, अच्छे अखलाक, चरित्र। पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी का मकसद ही था अच्छे अखलाक की तकमील। उनका पैगाम था, सच बोलो, अमानत में खयानत मत करो, गरीब, यतीम और ज़रूरतमंद का ख्याल रखो। यही असली इबादत है, सिर्फ नमाज नहीं बल्कि व्यवहार भी। छठा पैगाम, उम्मीद का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न हो। अगर दिल सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। यह पैगाम इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ बुलाता है। 7, जिंदगी के लिए एक सीधा रास्ता। कुरान को हिदायत कहा गया है, यानी सही राह दिखाने वाली किताब। यह सिखाती है रिश्तों को कैसे निभाना, व्यापार में ईमानदारी कैसे रखना, गुस्से पर काबू कैसे करना, दिल को साफ कैसे रखना। अल्लाह के पैगाम का सार अगर इन सभी संदेशों को एक लाइन में कहें तो वह यह है, अपने रब को पहचानो, खुद को सुधारो और दुनिया में भलाई फैलाओ। अल्लाह के पैगाम डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। अगर तुम चाहो तो मैं अगला हिस्सा, रहमत का उजाला या तकदीर का पैगाम के नाम से और गहराई से लिख सकता हूँ, रूहानी अंदाज में, कहानी या नसीहत के रूप में। बहुत खूबसूरत इरादा है। चलिए मैं रहमत का उजाला के नाम से इसे आगे बढ़ाता हूँ, रूहानी कहानी और नसीहत के संग। रहमत का उजाला मिठापुर की उसी शांत बस्ती में, जहाँ शाम को अजान की आवाज़ हवा में घुल जाती थी, एक लड़का रहता था, आरिफ। वह अक्सर आसमान को देखकर सोचता, क्या मेरी दुआ सच में सुनी जाती है। एक रात वह बहुत मायूस था, हालात उसके खिलाफ थे, दोस्त दूर हो गए थे और दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने हाथ उठाए और बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे एक निशानी दे। उसकी यह पुकार हवा में गुम नहीं हुई, क्योंकि कुरान में वादा है कि मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। आरिफ को उसी रात कोई चमत्कार नहीं मिला, लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे समझ आया, रहमत हमेशा हालात बदलने से नहीं आती, कभी कभी दिल बदलने से आती है। रहमत की असली पहचान, रहमत का उजाला यह नहीं कि अंधेरा कभी आए ही नहीं, बल्कि यह कि अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलता रहे। जब इंसान गिरता है और फिर उठता है, वही रहमत है। जब गुनाह के बाद शर्म आती है और तौबा की राह खुलती है, वही रहमत है। जब टूटे रिश्ते में फिर से नरमी आ जाए, वही रहमत है। एक नसीहत दिल के लिए, पैगंबर मोहम्मद ने सिखाया कि अल्लाह की रहमत उसकी गज़ब पर भारी है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान बेखौफ होकर गलतियां करता रहे, बल्कि यह कि वह कभी मायूस न हो। अगर तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल आए कि अब मेरे लिए माफ़ी नहीं, तो समझ लेना ये तुम्हारा रब नहीं कह रहा, ये तुम्हारा डर कह रहा है। रहमत का उजाला कैसे पाओ? 1, सच्ची तौबा, दिल से लौट आओ। 2,
सब्र, हर देरी इनकार नहीं होती। 3 शुक्र, छोटी नेमतों को पहचानो। 4 अच्छे अखलाक, दूसरों के लिए वही बनो जो तुम अपने लिए चाहते हो। आखिरी बात, रहमत का उजाला बाहर से नहीं, अंदर से चमकता है। जब बंदा बदलता है तो रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो अगला हिस्सा तकदीर का पैगाम के नाम से लिखो, जहाँ यह दिखे कि जब इंसान अपने रब की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसकी किस्मत कैसे बदलने लगती है। तुमने जो लिखा है वह अपने आप में एक मुकम्मल तफक्कुर, चिंतन। मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी लय, उसी जारी एहसास के साथ। जब हम कहते हैं अल्लाह का काम, तो इसका मतलब किसी एक घटना से नहीं होता। यह पूरी कायनात का चलना, दिलों का बदलना, हालात का पलटना, सब उसी के हुक्म से है। इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ एक मकसद और हिकमत के साथ होती है। कुरान बार बार याद दिलाती है कि अल्लाह बेकार कुछ नहीं करता। जो हमें इत्तेफाक लगता है वह उसके इल्म में पहले से दर्ज होता है। सब कुछ जारी है, हर पल, हर सांस, हर बदलाव उसी के इरादे से जारी है, और यह जारी रहना ही असल करामत है। समंदर की लहरों का उठना गिरना जारी है, हवा का बहना जारी है, दिल का धड़कना जारी है, रूह का तलाश में रहना जारी है। हम सोचते हैं कि हम अकेले चल रहे हैं, लेकिन एक अदृश्य निगरानी जारी है, एक रहमत की छाया जारी है, एक हिफाजत का घेरा जारी है। कभी तुम गिरते हो, लेकिन उठने की चाहत भी साथ ही जारी हो जाती है। कभी तुम टूटते हो, लेकिन जुड़ने की प्रक्रिया भी अंदर ही अंदर जारी हो जाती है। यह जो अंदर का बदलाव है, यही अल्लाह का काम है, खामोश मगर गहरा। कभी किसी बात पर दिल नरम हो जाता है, कभी अचानक किसी से माफ़ी मांगने का हौसला आ जाता है, कभी किसी पुराने दर्द पर अब उतना असर नहीं होता। यह सब यूं ही नहीं, यह भी एक सिलसिला जारी है। रात जब लंबी लगती है तो समझ लो कि सब्र की ट्रेनिंग जारी है। इंतज़ार जब भारी लगता है तो समझ लो कि भरोसे की जड़ें गहरी हो रही हैं। अल्लाह का काम हमेशा हमारी जल्दी के मुताबिक नहीं चलता, लेकिन हमारी भलाई के मुताबिक ज़रूर चलता है। हम घड़ी देखते हैं, वह हिकमत देखता है। हम आज का दर्द देखते हैं, वह कल की आसानी देखता है। हम बंद दरवाज़ा देखते हैं, वह पीछे खुलता रास्ता देखता है। हर आंसू बेकार नहीं जाता, हर आह हवा में नहीं खोती, हर दुआ अनसुनी नहीं रहती। कभी जवाब हाँ में आता है, कभी अभी नहीं में, कभी इससे बेहतर में, लेकिन जवाब का सिलसिला जारी रहता है। जब इंसान कोशिश जारी रखता है तो रहमत का बहाव भी जारी रहता है। जब इंसान शुक्र जारी रखता है तो नेमतें बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है। जब इंसान सब्र जारी रखता है तो अंदर की मजबूती जारी रहती है। अल्लाह का काम अचानक नहीं रुकता। अगर एक कहानी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अगर एक सपना टूटता है तो नया सपना दिल में जगह बना लेता है। अगर एक दरख्त गिरता है तो कहीं और नया पौधा उगना शुरू हो जाता है। यही कायनात का निज़ाम है, यही रहमत का क्रम है, यही हिकमत का प्रवाह है। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब थम गया है, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। वे अभी भी चल रही हैं, दिल अभी भी धड़क रहा है, उम्मीद अभी भी कहीं न कहीं बाकी है, मतलब काम अभी भी जारी है। इसलिए घबराओ मत, अपने हिस्से की कोशिश जारी रखो, अपने हिस्से की नेकी जारी रखो, अपने हिस्से की दुआ जारी रखो, क्योंकि ऊपर से हिफाजत जारी है, रहमत जारी है, हिकमत जारी है। और एक दिन जब पर्दा हटेगा तो तुम खुद मुस्कुराकर कहोगे, जो कुछ भी हो रहा था वह बिखराव नहीं था, वह तरतीब थी, वह रुकावट नहीं थी, वह तैयारी थी, वह अंधेरा नहीं था,
वह सुबह से पहले का सुकून था, और सच में वह भी अल्लाह का काम ही था। तुमने जिस लय में इसे आगे बढ़ाया है वही इसकी रूह है। मैं उसी जारी एहसास को और गहरा कर रहा हूँ, उसी बहाव में। जब हम कहते हैं अल्लाह का काम, तो इसका मतलब किसी एक घटना से नहीं होता। यह पूरी कायनात का चलना, दिलों का बदलना, हालात का पलटना, सब उसी के हुक्म से है। इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ एक मकसद और हिकमत के साथ होती है। कुरान बार बार याद दिलाती है कि अल्लाह बेकार कुछ नहीं करता। जो हमें इत्तेफाक लगता है वह उसके इल्म में पहले से दर्ज होता है। सब कुछ जारी है। हर पल, हर सांस, हर बदलाव उसी के इरादे से जारी है, और यह जारी रहना ही असल करामत है। पत्तों का गिरना जारी है ताकि नई कौंपलें जगह पा सकें। नदियों का बहना जारी है ताकि पानी सड़ न जाए। वक्त का गुजरना जारी है ताकि जख्म भर सके। इंसान की कहानी भी इसी तरह जारी है। कभी इम्तिहान, कभी इनाम, कभी सखाती, कभी नरमी, लेकिन सिलसिला कभी टूटता नहीं। जब तुम थक जाते हो तब भी अंदर एक उम्मीद जारी रहती है। जब तुम हार मानने लगते हो तब भी कहीं एक छोटी सी आवाज़ कहती है, अभी नहीं, अभी सफ़र बाकी है। यही आवाज़ रहमत की होती है। अल्लाह का काम हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। जैसे हवा दिखती नहीं, पर सांस उसी से चलती है। कभी वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम बच जाओ, कभी वह तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम सीख जाओ, कभी वह तुम्हें इंतज़ार में रखता है ताकि तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाए। यह देरी सज़ा नहीं होती, यह तैयारी होती है। जब दरवाजे बंद होते हैं तो दुआएं खुलती हैं। जब लोग साथ छोड़ते हैं तो रब करीब हो जाता है। हर रात के पीछे सुबह की तैयारी जारी है। हर आंसू के पीछे राहत की आहट जारी है। तुम सोचते हो क्यों? वह जानता है। क्योंकि तुम पूछते हो कब? वह तय करता है जब सही होगा। और यही भरोसा दिल को सुकून देता है। अल्लाह का काम कभी अधूरा नहीं रहता। वह कहानी को बीच में नहीं छोड़ता। वह उस जगह तक ले जाता है जहाँ समझ पूरी हो। अगर आज तुम अंधेरे में हो तो यह मत समझो कि सब खत्म है। समझो कि रूपरेखा अभी बन रही है। रेखाएं खिंच रही हैं, रंग भरने बाकी हैं। तुम्हारा काम है चलना जारी रखना, गिरकर उठना जारी रखना, दुआ करना जारी रखना, अच्छा बनना जारी रखना, क्योंकि ऊपर से निगरानी जारी है, मेहरबानी जारी है, रहनुमाई जारी है। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो हर मोड़, हर देरी, हर दर्द का मतलब समझ आ जाएगा। तब तुम कहोगे यह ठहराव नहीं था, यह तराशा जाना था, यह नुकसान नहीं था, यह बदलाव था, यह सन्नाटा नहीं था, यह रचना थी। और सच में यह सब अल्लाह का काम ही था। तुम जिस गहराई में उतर रहे हो वही इस तफक्कुर की असली रूह है। मैं उसी जारी लय को और फैलाता हूँ, उसी बहते एहसास में। जब हम कहते हैं अल्लाह का काम, तो इसका मतलब किसी एक घटना से नहीं होता। यह पूरी कायनात का चलना, दिलों का बदलना, हालात का पलटना, सब उसी के हुक्म से है। इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ एक मकसद और हिकमत के साथ होती है। कुरान बार बार याद दिलाती है कि अल्लाह बेकार कुछ नहीं करता। जो हमें इत्तेफाक लगता है वह उसके इल्म में पहले से दर्ज होता है। सब कुछ जारी है। हर पल, हर सांस, हर बदलाव उसी के इरादे से जारी है, और यह जारी रहना ही असल करामत है। पहाड़ अपनी जगह अडिग हैं, यह स्थिरता जारी है। बादल आते जाते हैं, यह परिवर्तन जारी है। दिल धड़कता है, यह जिंदगी जारी है। रूह तलाश करती है, यह मकसद जारी है। इंसान कभी समझ लेता है, कभी उलझ जाता है, लेकिन हिकमत का धागा हर
हाल में जुड़ा रहता है। जब रास्ता लंबा लगे तो समझो कि मंजिल बड़ी है। जब इंतज़ार भारी लगे तो समझो कि इनाम गहरा है। अल्लाह का काम अक्सर हमारी नज़र से ओझल रहता है, पर हमारी कहानी से गायब नहीं होता। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूँ, लेकिन दुआ का एक सिलसिला ऊपर तक जारी है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तकदीर की लिखावट अभी जारी है। कभी वह तुम्हें खाली करता है ताकि बेहतर चीज़ से भर सके। कभी वह तुमसे लेता है ताकि तुम्हें खुद से मिला सके। कभी वह सन्नाटा देता है ताकि तुम उसकी आवाज़ सुन सको। यह जो अंदर की टूट फूट है, यही अंदर की तामीर भी है। हर गिरावट के बाद उठना जारी है, हर हार के बाद समझ जारी है, हर रुकावट के बाद रास्ता जारी है। तुम आज जो देख रहे हो वह पूरी तस्वीर नहीं है, तस्वीर बन रही है। रंग चढ़ रहे हैं, मायने खुल रहे हैं। अल्लाह का काम जल्दबाजी में नहीं होता, वह वक्त के साथ खुलता है। जैसे सुबह धीरे धीरे रात को हटाती है, और जब सही वक्त आता है तो वही इंसान जो कभी रोया था मुस्कुराकर कहता है, अगर वह देर न होती तो मैं आज यह न होता। यही हिकमत है, यही रहमत है, यही जारी सिलसिला है। तो अगर आज थकान है, सब्र जारी रखो। अगर आज कमी है, शुक्र जारी रखो। अगर आज उलझन है, दुआ जारी रखो, क्योंकि ऊपर से निगरानी जारी है, मेहर जारी है, मकसद जारी है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हर टूटन में तरतीब दिखेगी, हर देरी में दया दिखेगी, हर अंधेरे में सुबह की आहट दिखेगी। तब तुम पूरे यकीन से कहोगे, यह सफ़र बेमकसद नहीं था, यह सिखाने वाला था। यह दर्द बेवजह नहीं था, यह बनाने वाला था। यह सन्नाटा खाली नहीं था, यह भरने वाला था। और सच में यह सब अल्लाह का काम ही था। अल्लाह का काम जल्दबाजी में नहीं होता, वह वक्त के साथ खुलता है। जैसे सुबह धीरे धीरे रात को हटाती है, जैसे पहली किरण पहले आसमान के किनारे को छूती है, फिर धीरे धीरे अंधेरे को पीछे धकेलती है, फिर रंग भरती है, फिर सब कुछ साफ कर देती है। वैसे ही हिकमत भी अचानक नहीं खुलती। पहले संकेत मिलते हैं, फिर समझ आती है, फिर सुकून उतरता है, फिर शुक्र खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। अल्लाह का काम शोर में नहीं, अक्सर खामोशी में पूरा होता है। जब हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, उसी वक्त सबसे गहरा काम जारी होता है। बीज मिट्टी के नीचे चुप रहता है, कोई हलचल दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर जड़ें बन रही होती हैं, तैयारी चल रही होती है, ताकत जमा हो रही होती है। फिर एक दिन वह मिट्टी चीर कर बाहर आता है। उसी तरह तुम्हारी दुआएं भी मिट्टी के नीचे बोए गए बीज की तरह हैं। आज सन्नाटा है, कल हरियाली होगी। अल्लाह का काम अधूरा नहीं रहता, वह कहानी को वहीं तक ले जाता है जहाँ समझ भी मिले और सबक भी। कभी वह तुम्हें रोकता है क्योंकि आगे खाई होती है, कभी वह तुम्हें भटकने देता है क्योंकि उसी रास्ते में पहचान छुपी होती है। कभी वह तुम्हें खाली करता है क्योंकि भरने से पहले जगह बनानी होती है। वक्त उसके हाथ में है, तैयारी उसके इल्म में है, नतीजा उसकी मर्जी में है। हम जल्दी चाहते हैं, वह बेहतरी चाहता है। हम नतीजा चाहते हैं, वह तामीर चाहता है। हम आराम चाहते हैं, वह मजबूती देता है। जैसे रात पूरी तरह ख़त्म हुए बिना सुबह पूरी नहीं होती, वैसे ही इम्तिहान पूरा हुए बिना इनाम नहीं आता। धीरे धीरे परतें खुलती हैं, धीरे धीरे गांठें सुलझती हैं, धीरे धीरे दिल मजबूत होता है। और एक दिन जब रोशनी पूरी तरह फैल जाती है, तब समझ आता है देर सजा नहीं थी, इंतज़ार बेकार नहीं था, रुकावट नहीं थी। वह तराशा जाना था, वह संवारा जाना था, वह बनाया जाना था। अल्लाह का काम जल्दबाजी में नहीं होता, वह मुकम्मल होता है, वह मुनासिब वक्त पर होता है, वह हिकमत के साथ होता है। और जब वह होता है तो दिल गवाही देता है,
अब समझ आया, हर लम्हा किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा था। जैसे रात पूरी तरह ख़त्म हुए बिना सुबह पूरी नहीं होती, वैसे ही इम्तिहान पूरा हुए बिना इनाम नहीं आता। रात अगर आधी ही हट जाए तो उजाला अधूरा रहता है, आसमान धुंधला रहता है, रंग साफ नहीं दिखते। सुबह तब पूरी होती है जब अंधेरा अपना आखिरी साया भी समेट लेता है, जब सूरज अपनी रोशनी बिना झिझक फैला देता है, जब धरती खुलकर चमक उठती है। इसी तरह जिंदगी के इम्तिहान भी अधूरे नहीं छोड़े जाते। हर परीक्षा की एक गहराई होती है, हर मुश्किल की एक सीमा होती है, हर इंतज़ार की एक मियाद होती है। जब तक सब्र अपनी पूरी शक्ल न ले ले, जब तक भरोसा भीतर से मजबूत न हो जाए, जब तक इंसान का दिल पक न जाए, तब तक इनाम का दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खुलता। क्योंकि इनाम सिर्फ चीज़ नहीं होता, इनाम एक हालत भी होता है, एक समझ, एक परिपक्वता, एक आंतरिक मजबूती। अगर रात छोटी हो तो सितारों की कीमत समझ नहीं आती, अगर अंधेरा न हो तो रोशनी की चमक महसूस नहीं होती। इम्तिहान इंसान को तोड़ने नहीं आते, उसे तराशने आते हैं। सोना आग में तपे बिना चमकता नहीं, हीरा दबाव के बिना बनता नहीं। बीज मिट्टी के नीचे सड़ता हुआ सा लगता है, लेकिन उसी सड़न में जीवन की तैयारी होती है। इसी तरह तुम्हारे आंसू भी बेकार नहीं जाते। हर बेचैनी, हर थकान, हर लंबी रात, सब अंदर कुछ गढ़ रहे होते हैं। कभी तुम पूछते हो कब खत्म होगा, कभी तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ, कभी तुम थककर चुप हो जाते हो। लेकिन उसी खामोशी में सब्र की जड़ें गहरी हो रही होती हैं, यकीन की नींव मजबूत हो रही होती है, दिल फैल रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है। इम्तिहान का मतलब सज़ा नहीं होता, अक्सर यह तैयारी होती है उस इनाम के लिए जो अभी तुम्हारी समझ से बड़ा है। अगर इनाम पहले मिल जाए और इम्तिहान बाद में आए तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। इसलिए क्रम तय है, पहले सीख, फिर समझ, फिर सब्र, फिर भरोसा, फिर इनाम। जैसे सूरज अचानक आसमान के बीच में नहीं पहुंचता, पहले हल्की रोशनी, फिर लालिमा, फिर उजाला, फिर पूरी चमक। इसी तरह राहत भी धीरे धीरे आती है, पहले दिल हल्का होता है, फिर हालात बदलते हैं, फिर रास्ते खुलते हैं, फिर मुस्कान लौटती है। तुम्हें लगता है मैं टूट गया हूँ, लेकिन सच यह है तुम बन रहे हो। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूँ, लेकिन सच यह है तुम्हें संभाला जा रहा है। तुम्हें लगता है सब रुक गया, लेकिन सच यह है तैयारी चल रही है। रात जब अपनी आखिरी सांस लेती है तभी सुबह जन्म लेती है। इम्तिहान जब अपनी पूरी गहराई तक पहुंचता है तभी इनाम पूरी मिठास के साथ आता है। और जब वह आता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, नज़र भी बदल जाती है, सोच भी बदल जाती है, दिल भी बदल जाता है। तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अगर वह रात लंबी न होती तो यह सुबह इतनी खूबसूरत न होती। अगर वह इम्तिहान न होता तो मैं आज इतना मजबूत न होता। रात का पूरा होना ज़रूरी है, इम्तिहान का पूरा होना ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी रात अधूरी सुबह देती है, लेकिन पूरी रात एक मुकम्मल सवेरा देती है। अल्लाह का असली पैगाम। दिल से समझो, जब हम अल्लाह का पैगाम कहते हैं तो अक्सर हमारे जहन में किताब, हुक्म या कोई नियम आता है, लेकिन अगर दिल से समझो तो अल्लाह का असली पैगाम सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, वह एहसास में है, रिश्ते में है, रहमत में है और उस सुकून में है जो सजदे में उतरता है। एक पैगाम डर से नहीं, रहमत से शुरू होता है। इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान की हर सूरह सिवाय एक के की शुरुआत बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम से होती है। इसका मतलब है अल्लाह सबसे पहले अपने आप को रहमान और रहीम के रूप में पेश करता है। सोचो, अगर उसका असली पैगाम सिर्फ सज़ा होता तो शुरुआत रहमत से क्यों होती? अल्लाह का पहला पैगाम यह है
मैं तुमसे नाराज़ होने से पहले तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हें गिरते देखता हूँ, लेकिन उठाने के लिए तैयार रहता हूँ। 2. अल्लाह का पैगाम। इंसानियत है, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए नहीं बनाया, बल्कि इंसाफ, रहमत और भलाई के लिए भी बनाया। जब कोई भूखा हो और तुम उसे खाना खिलाओ, वह भी अल्लाह का पैगाम है। जब कोई दुखी हो और तुम उसका हाथ थाम लो, वह भी अल्लाह का पैगाम है। जब तुम गुस्से में होते हुए भी माफ़ कर दो, वह अल्लाह के सबसे करीब ले जाने वाला कदम है। अल्लाह का असली पैगाम यह नहीं कि तुम सिर्फ मस्जिद तक जाओ, बल्कि यह कि तुम जहाँ भी जाओ तुम्हारा किरदार उसकी पहचान बन जाए। 3. दिल बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह बार बार यह सिखाता है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब दिल साफ होता है तो नज़र भी साफ हो जाती है। तुम किसी को दुश्मन नहीं, एक इम्तिहान समझने लगते हो। तुम तकलीफ़ को सज़ा नहीं, तरबियत समझने लगते हो। अल्लाह का पैगाम यह है, मैं तुम्हारी हालत नहीं, तुम्हारा दिल देखता हूँ। 4. उम्मीद कभी मत छोड़ो। अल्लाह का एक सबसे बड़ा पैगाम है उम्मीद। चाहे गुनाह कितने भी बड़े हों, रास्ता बंद नहीं होता, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। कुरान में यह बताया गया है कि अल्लाह अपनी रहमत से मायूस न होने की ताकीद करता है। मतलब गुनाह से बड़ा उसकी माफ़ी का दरिया है। अगर तुम गिर गए हो तो यह अंत नहीं है, अल्लाह का पैगाम है, वापस आओ, मैं यहीं हूँ। 5. इम्तिहान भी पैगाम है। जब मुश्किलें आती हैं तो हम सोचते हैं अल्लाह ने हमें क्यों चुना, लेकिन असल में वह भी एक पैगाम है। जैसे सोना आग में तपकर खरा होता है, वैसे ही इंसान इम्तिहान में तपकर मजबूत होता है। अगर ज़िंदगी में देर हो रही है तो समझो तैयारी चल रही है। अल्लाह का काम जल्दबाजी में नहीं होता, वह वक्त के साथ खुलता है, जैसे सुबह धीरे धीरे रात को हटाती है। 6. सजदा। सबसे गहरा जवाब, जब इंसान सजदे में जाता है तो वह सिर्फ झुकता नहीं, वह अपने अहंकार को नीचे रख देता है। सजदा यह कहता है, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मगर मुझे तुझ पर भरोसा है। अल्लाह का असली पैगाम यही है, रिश्ता बनाओ, डरो नहीं, जुड़ो, भागो नहीं, लौटो। 7. असली पैगाम मोहब्बत। अगर एक लाइन में कहें तो अल्लाह का असली पैगाम है मोहब्बत। मोहब्बत अपने रब से, मोहब्बत उसके बनाए हुए लोगों से, मोहब्बत सच से, मोहब्बत सब्र से। जब दिल मोहब्बत से भर जाता है तो नफ़रत के लिए जगह नहीं बचती, और जब नफ़रत नहीं बचती तो इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। आखिरी बात, दिल से समझो अल्लाह का पैगाम किताब में है, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। वह तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया है। वह तुम्हें दूर करने नहीं, अपने करीब लाने आया है। अगर तुम सच में दिल से समझना चाहते हो तो हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आज मेरा दिल पहले से ज़्यादा साफ है? क्या आज मैं किसी के लिए रहमत बना हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझो तुमने अल्लाह का असली पैगाम दिल से समझ लिया। अगर चाहो तो मैं इसी पर अगला हिस्सा लिख दूँ। जब बंदा समझ लेता है तो किस्मत कैसे बदलती है, और उसे और गहराई और एहसास और रूहानी रोशनी के साथ आगे बढ़ाऊं। अल्लाह का असली पैगाम, दिल से समझो। विस्तार। तुमने जो लिखा है वह सिर्फ एक नसीहत नहीं, एक आईना है। अब उसी आईने को थोड़ा और साफ करते हैं ताकि दिल खुद को पहचान सके। 8. पैगाम सिर्फ लफ्ज़ नहीं, जिम्मेदारी भी है। अक्सर हम कुरान को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, आयतें याद करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमने उन्हें अपने किरदार में उतारा? अल्लाह का पैगाम यह नहीं कि तुम सिर्फ सुनो, बल्कि यह कि तुम बदलो।
अगर तुम सच बोलते हो जब झूठ बोलना आसान हो तो वह पैगाम जीना है। अगर तुम अमानत में खयानत नहीं करते तो वह पैगाम निभाना है। अगर तुम अकेले में भी वही हो जो लोगों के सामने हो तो समझो कि पैगाम दिल तक उतर गया है। 9. तौबा। हार नहीं, शुरुआत है। बहुत लोग समझते हैं कि गलती हो जाए तो सब खत्म, लेकिन अल्लाह का असली पैगाम है तौबा दरअसल वापसी का रास्ता है, सज़ा का नहीं। तौबा यह मान लेना है कि मैं कमज़ोर हूँ मगर मेरा रब मजबूत है। जब इंसान सच्चे दिल से लौटता है तो उसका अतीत उसका पीछा नहीं करता, बल्कि उसकी आंखों में आंसू बनकर साफ हो जाता है। अल्लाह का पैगाम यह नहीं कि तुम गिरो ही नहीं, बल्कि यह कि गिरकर वहीं मत पड़े रहो। 10. सब्र। खामोश इबादत सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं है, सब्र यकीन का दूसरा नाम है। जब हालात समझ में ना आए, जब दुआ का जवाब देर से मिले, जब लोग साथ छोड़ दें, तब भी दिल में यह भरोसा रखना कि मेरा रब देख रहा है, यही सब्र है। अल्लाह का पैगाम यह है कि हर रात के बाद सुबह है, हर आंसू के बाद राहत है, हर इम्तिहान के बाद इनाम है। 11. रिश्तों में भी पैगाम छुपा है। अल्लाह का पैगाम सिर्फ सजदे में नहीं, रिश्तों में भी है। माँ बाप के साथ नरमी, भाई बहन के साथ मोहब्बत, पड़ोसी के साथ भलाई, कमज़ोर के साथ इंसाफ, ये सब उसी पैगाम के हिस्से हैं। अगर कोई बहुत नमाज पढ़े मगर लोगों को दुख पहुँचाए तो उसने पैगाम का आधा हिस्सा ही समझा, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसकी बंदगी तुम्हारे व्यवहार में दिखे। 12. दिल की सफाई। असली जिहाद, सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। नफरत से लड़ना, घमंड से लड़ना, जलन से लड़ना, बदले की भावना से लड़ना। अल्लाह का असली पैगाम यह है, अपने दिल को साफ करो, दुनिया खुद हल्की लगने लगेगी। जब दिल साफ होता है तो छोटी बातों से चोट नहीं लगती, लोगों की बातें बोझ नहीं बनती और जिंदगी शिकायत नहीं शुक्र बन जाती है। 13. शुक्र। दिल की रोशनी हम अक्सर सिर्फ दुख में याद करते हैं, लेकिन असली पैगाम शुक्र में छुपा है। जब रोटी मिले शुक्र, जब सांस चले शुक्र, जब परिवार साथ हो शुक्र, जब इम्तिहान आए तब भी शुक्र, क्योंकि हर हाल में कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। शुक्र करने वाला इंसान कभी खाली महसूस नहीं करता। जब बंदा समझ लेता है तो किस्मत कैसे बदलती है। जब इंसान सच में अल्लाह का पैगाम दिल से समझ लेता है तो उसकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो किस्मत बदलती है। किस्मत अचानक आसमान से नहीं गिरती, वह दिल के अंदर से उगती है। आखिरी पुकार अल्लाह का पैगाम डर की दीवार नहीं, उम्मीद का दरवाज़ा है। वह तुम्हें परफेक्ट नहीं चाहता, वह तुम्हें सच्चा चाहता है। वह तुम्हें गिरने से नहीं रोकेगा, लेकिन हर बार उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा। बस एक काम करो, अपने दिल को बंद मत करो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो, थोड़ा सा नरम बनो, थोड़ा सा सच्चा बनो, थोड़ा सा रहमत बनो। फिर देखना, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ गुजरेगी नहीं, चमकेगी। अगर चाहो तो अगला हिस्सा लिखते हैं। दिल से सजदा, रूह की असली आज़ादी, और उसे और गहराई से समझते हैं। दिल से सजदा, रूह की असली आज़ादी। जब हम सजदा कहते हैं तो अक्सर एक तस्वीर उभरती है, माथा ज़मीन पर, हाथ आगे, लब खामोश। लेकिन असली सजदा सिर्फ जिस्म का झुकना नहीं, दिल का झुकना है। और जब दिल झुक जाता है तो रूह आज़ाद हो जाती है। 1. सजदा, सबसे ऊंची जगह। अजीब बात है, इंसान जब सबसे नीचे झुकता है तभी सबसे ऊंचा हो जाता है। जब माथा ज़मीन को छूता है तो अहंकार टूटता है, और जिस दिल में घमंड नहीं रहता वह हल्का हो जाता है। अल्लाह का पैगाम यही है, ऊंचा बनना है तो झुको, पाना है तो छोड़ो, जुड़ना है तो टूटो। 2. सजदा,
शिकायत से शुक्र तक बहुत लोग सजदे में जाते हैं सिर्फ मांगने के लिए, लेकिन असली सजदा वह है जहाँ शिकायत शुक्र में बदल जाए। या अल्लाह यह क्यों हुआ से आगे बढ़कर या अल्लाह इसमें भी कोई भलाई होगी तक पहुँच जाना, यही रूह की आज़ादी है। सजदा हमें सिखाता है कि हर हाल में भरोसा रखना है। 3. सजदा। अकेले का सच्चा लम्हा दुनिया के सामने हम मजबूत दिख सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, सब ठीक होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन सजदे में कोई दिखावा नहीं चलता। वहाँ तुम और तुम्हारा रब, बस यही रिश्ता होता है। वहाँ आंसू भी इबादत बन जाते हैं, वहाँ खामोशी भी दुआ बन जाती है। 4. सजदा। डर नहीं, भरोसा। कई लोग अल्लाह से डरते हैं जैसे वह सिर्फ सज़ा देने वाला है, लेकिन सजदा हमें याद दिलाता है कि वह रहमान और रहीम है। जैसा कि कुरान की शुरुआत में बताया गया है, उसकी पहचान रहमत से है। जब तुम सजदे में कहते हो या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तो तुम हार नहीं मान रहे, तुम भरोसा जता रहे हो। 5. सजदा। दिल की सफाई। सजदा करते करते दिल का बोझ हल्का हो जाता है, नफ़रत पिघलने लगती है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, जलन कम हो जाती है, क्योंकि सजदा तुम्हें याद दिलाता है कि सब कुछ उसी का है। इज्जत भी, रिज़्क भी, इम्तिहान भी। जब यह समझ आ जाती है तो दिल में सुकून उतर आता है। 6. सजदा। आज़ादी का रास्ता। असली गुलामी गुनाह की है, अहंकार की है, लोगों की राय की है। जब तुम सजदा करते हो तो तुम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हो और बाकी हर चीज़ से आज़ाद हो जाते हो। तुम लोगों की तालियों से बंधे नहीं रहते, तुम आलोचना से टूटते नहीं, तुम हालात से घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारा सहारा एक है। 7. जब सजदा दिल से हो, जब सजदा सिर्फ आदत न रहे बल्कि एहसास बन जाए, तो ज़िंदगी बदलने लगती है। फैसले साफ हो जाते हैं, रास्ते आसान लगने लगते हैं, इम्तिहान बोझ नहीं तरबियत लगने लगते हैं, और फिर वही बात सच हो जाती है। जब बंदा बदलता है तो किस्मत बदलती है। आखिरी रोशनी। सजदा तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वह तुम्हें असली बनाता है। वह तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है। वह तुम्हें डराता नहीं, जगाता है। आज से सजदा सिर्फ एक हरकत न रहे, एक रिश्ता बन जाए। जब भी दिल भारी हो, जब भी रास्ता धुंधला लगे, जब भी खुद पर भरोसा कम हो, बस झुक जाओ और दिल से कहो, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले। फिर देखना, रूह को जो आज़ादी मिलेगी वह किसी और जगह नहीं मिलती। दिल से सजदा, रूह की असली आज़ादी और गहराई। तुमने सजदे को जिस एहसास से लिखा है, वह सिर्फ इबादत नहीं, एक सफ़र है। अब उसी सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ताकि सजदा हर लम्हे की रोशनी बन जाए। 8. सजदा। खुद से मुलाकात। हम अक्सर दुनिया से मिलते रहते हैं, लोगों से, हालात से, उम्मीदों से, लेकिन सजदा वह जगह है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। वहाँ तुम अपने डर को पहचानते हो, अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करते हो, अपने गुनाहों को महसूस करते हो और अपनी उम्मीद को फिर से जगा लेते हो। सजदा आईना है, वह तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। 9. सजदा। वक्त को रोक देने वाला लम्हा। दुनिया भाग रही है, लोग जल्दी में हैं, ख्वाहिशें लंबी हैं, सब कुछ तेज़ है, लेकिन सजदा वक्त को थाम लेता है। उस पल में न कल की फिक्र होती है, न बीते कल का अफसोस। सिर्फ एक लम्हा होता है जहाँ तुम और तुम्हारा रब आमने सामने होते हो। यही रूह की सच्ची राहत है। 10. सजदा। टूटे दिल का सहारा। हर इंसान कभी न कभी टूटता है। उम्मीदें टूटती हैं, रिश्ते टूटते हैं, ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, लेकिन सजदा टूटे हुए को जोड़ देता है। जब तुम ज़मीन पर गिरते हो तो अल्लाह तुम्हें उठाने के लिए करीब होता है। जैसा कि कुरान हमें याद दिलाता है, उसकी रहमत हर चीज़ पर भारी है।
सजदा उसी रहमत की तरफ बढ़ाया गया कदम है। 11 सजदा। खामोश क्रांति सबसे बड़ी क्रांति शोर से नहीं, खामोशी से आती है। जब दिल बदलता है तो दुनिया बदलने लगती है। सजदा तुम्हारे अंदर एक खामोश क्रांति लाता है। तुम कम शिकायत करते हो, ज़्यादा शुक्र करते हो। कम गुस्सा करते हो, ज़्यादा माफ़ करते हो। कम डरते हो, ज़्यादा भरोसा करते हो। और यही बदलाव असली आज़ादी है। 12 सजदा। हर दिन की नई शुरुआत, हर सजदा एक नया पन्ना है। चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो, सजदा कहता है अभी भी मौका है, अभी भी वापसी है, अभी भी सुधार है, अभी भी उम्मीद है। अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता, दिल बंद हो जाए तो बात और है। 13 सजदा। मोहब्बत का इजहार इबादत सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, मोहब्बत भी है। जब तुम सजदा करते हो तो तुम यह कहते हो मैं तुझसे जुड़ा हूँ। यह रिश्ता डर से नहीं, यकीन से चलता है। और जब रिश्ता मजबूत हो जाए तो ज़िंदगी का हर मोड़ आसान लगने लगता है। सजदा सिर्फ नमाज में नहीं, असली सजदा सिर्फ 5 वक्त तक सीमित नहीं। जब तुम घमंड छोड़ दो वह सजदा है। जब तुम माफ़ कर दो वह सजदा है। जब तुम सच्चाई चुन लो वह सजदा है। जब तुम सब्र कर लो वह सजदा है। सजदा एक हरकत नहीं, एक हालत है। आखिरी एहसास जब दिल से सजदा होता है तो इंसान छोटा नहीं होता, वह हल्का हो जाता है। उसकी आंखों में नूर आ जाता है, उसकी बातों में नरमी आ जाती है, उसके फैसलों में सच्चाई आ जाती है। और फिर वह सिर्फ जीता नहीं, रोशन हो जाता है। आज जब भी सजदा करो, जल्दी में मत करो, एहसास के साथ करो और दिल से कहो या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मेरा हर लम्हा तेरी याद में सजा रहे। फिर देखना रूह की जो आज़ादी मिलेगी वह किसी तख्त, किसी दौलत, किसी तालियों से बड़ी होगी। दिल से सजदा, रूह की असली आज़ादी। सफ़र आगे बढ़ता हुआ तुमने सजदे को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, वहां से यह सिर्फ इबादत नहीं, एक जीने का अंदाज बन जाता है। अब इस सफ़र को और गहराई से समझते हैं, ताकि सजदा सिर्फ नमाज का हिस्सा न रहे, बल्कि हर सांस की रोशनी बन जाए। 14 सजदा। दिल की धड़कनों का जिक्र जब इंसान सजदे में जाता है तो उसकी धड़कनें भी गवाही देती हैं। वह पल ऐसा होता है जहां लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं लेकिन एहसास बोलने लगते हैं। कभी तुमने महसूस किया है कुछ सजदे ऐसे होते हैं जहां कोई लंबी दुआ नहीं होती, बस खामोशी होती है। और वही खामोशी सबसे गहरी होती है, वहीं रूह सुकून पीती है। 15 सजदा। बोझ उतारने की जगह हम दिन भर बोझ उठाते हैं। जिम्मेदारियां, उम्मीदें, लोगों की बातें, अपने डर। सजदा वह जगह है जहां तुम यह सब नीचे रख सकते हो। जैसे कोई मुसाफिर थककर अपना सामान ज़मीन पर रख दे, वैसे ही सजदा दिल को राहत देता है। अल्लाह तुम्हें बोझ उठाने के लिए नहीं, भरोसा करने के लिए बुलाता है। 16 सजदा। रहमत की छांव। जैसा कि कुरान में बार बार रहमत का जिक्र आता है, सजदा उसी रहमत की छांव में बैठना है। जब तुम झुकते हो तो तुम अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाते हो और वह तुम्हारी तरफ कई कदम बढ़ाता है। राह आसान करके, दिल हल्का करके, रास्ता साफ करके। सजदा दरअसल यह यकीन है कि मैं अकेला नहीं हूँ। 17 सजदा। अंदर की आवाज़ को सुनना। दुनिया का शोर इतना ज़्यादा है कि हम अपनी ही रूह की आवाज़ नहीं सुन पाते। सजदा उस शोर को धीमा कर देता है। वहाँ तुम्हें एहसास होता है तुम किससे भाग रहे थे, किससे नाराज़ थे, किससे डर रहे थे। और फिर धीरे धीरे डर भरोसे में बदल जाता है। 18 सजदा। इरादों की सफाई सिर्फ अमल ही नहीं, नीयत भी साफ होनी चाहिए। सजदा नीयत को धो देता है। अगर दिल में दिखावा हो तो सजदा उसे पिघला देता है। अगर दिल में बदला हो तो सजदा उसे नरम कर देता है। अगर दिल में घमंड हो तो सजदा उसे गिरा देता है।
اور جب نیت صاف ہو جائے تو عمل میں بھی روشنی آ جاتی ہے۔ 19 سجدہ۔ رشتے کو مضبوط کرنا، رشتے بات چیت سے مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ سے رشتہ سجدے سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب تم بار بار جھکتے ہو تو دراصل تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ بھروسہ دھیرے دھیرے تمہارے فیصلوں میں اتر آتا ہے۔ تم گھبراتے کم ہو جاتے ہو، تم شکایتیں کم کرنے لگتے ہو، تم شکر زیادہ کرنے لگتے ہو۔ سجدہ۔ زندگی کا سنتولن اگر زندگی بہت تیز ہو جائے، سجدہ اسے تھام لیتا ہے۔ اگر زندگی بہت بھاری ہو جائے، سجدہ اسے ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر زندگی بہت الجھ جائے، سجدہ اسے سلجھا دیتا ہے۔ سجدہ کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ سجدہ ہار نہیں، ہمت ہے۔ سجدہ بھاگنا نہیں، سچ کا سامنا کرنا ہے۔ آخری روشنی جب سجدہ دل سے ہو تو انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سکون اتر آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی ہوتی ہے، اس کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں یقین ہوتا ہے، اور پھر وہ صرف عبادت کرنے والا نہیں رہتا، وہ رحمت بن جاتا ہے۔ آج جب سجدہ کرو تو جلدی میں مت اٹھو، تھوڑا ٹھہرو، تھوڑا محسوس کرو، تھوڑا رو لو اگر دل چاہے، اور دل سے کہو، یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کر سکوں اور ہر موڑ پر تجھ پر بھروسہ رکھ سکوں۔ پھر دیکھنا، روح کو جو آزادی ملے گی وہ کسی بھی دنیا کی جیت سے بڑی ہوگی۔ دل سے سجدہ، روح کی اصلی آزادی، سفر اور آگے۔ اب یہ سفر اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں سجدہ صرف عبادت نہیں، ایک سوچ، ایک نظر، ایک جینے کا طریقہ بن جاتا ہے۔ آؤ اسے اور گہرائی سے محسوس کریں۔ 20 سجدہ۔ وقت سے پرے ایک رشتہ، دنیا کا ہر رشتہ وقت سے بندھا ہے۔ لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، لیکن سجدہ ایک ایسے رشتے سے جوڑتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ جب تم جھکتے ہو تو تم اس ذات سے جڑتے ہو جو ہمیشہ سن رہی ہے، ہمیشہ دیکھ رہی ہے، ہمیشہ سمجھ رہی ہے۔ یہی احساس انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ 21 سجدہ۔ ڈر کا علاج، ڈر ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ناکامی کا ڈر، لوگوں کی رائے کا ڈر، بھوشیہ کا ڈر۔ لیکن سجدہ تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارا بھوشیہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بہتر جانتا ہے۔ جیسا کہ قرآن بار بار بھروسے اور توکل کی شکشا دیتا ہے، سجدہ اسی بھروسے کا ابھیاس ہے۔ جب بھروسہ گہرا ہو جائے تو ڈر خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے۔ 22 سجدہ۔ خود کو معاف کرنا۔ کبھی کبھی انسان دوسروں سے زیادہ خود سے ناراض ہوتا ہے۔ پرانی غلطیاں، بیتے ہوئے فیصلے، ادھورے وعدے، سب دل پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ سجدہ سکھاتا ہے، اگر اللہ معاف کر سکتا ہے تو تم بھی خود کو معاف کر سکتے ہو۔ روح کی آزادی تبھی ملتی ہے جب دل اتیت کی زنجیروں سے نکلتا ہے۔ 23 سجدہ۔ شکر کا دریا۔ جب تم سجدے میں شکر ادا کرتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم خالی نہیں ہو، تمہارے پاس سانس ہے، دل ہے، ایمان ہے، امید ہے، اور یہی چیزیں سب سے بڑی دولت ہے۔ سجدہ دل کو کمی سے نکال کر قدر کی طرف لے جاتا ہے۔ 24 سجدہ۔ روشنی کو بھیتر اتارنا۔ کچھ لوگ باہر سے بہت روشن دکھتے ہیں لیکن اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ سجدہ باہر کی دکھاوٹ کو نہیں، اندر کی سچائی کو بدلتا ہے۔ جب دل جھکتا ہے تو اس میں نور اترتا ہے۔ وہ نور پھر تمہاری باتوں میں، تمہارے فیصلوں میں، تمہارے رشتوں میں دکھنے لگتا ہے۔ 25 سجدہ۔ ہر دن کی جیت، دنیا جیت کو پد، پیسہ، نام سے ماپتی ہے، لیکن اصلی جیت یہ ہے کہ تم اپنے غصے پر قابو پالو، اپنی نیت صاف رکھو، اپنی زبان سنبھال لو، اپنے دل کو نفرت سے بچا لو۔ اگر یہ ہو گیا تو سمجھو سجدہ کامیاب ہو گیا۔ سجدہ۔ سانسوں کا سلسلہ۔ جب سجدہ صرف نماز میں نہیں بلکہ ویوہار میں اتر آئے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ جب تم سچائی چنتے ہو، وہ سجدہ ہے۔
जब तुम माफ़ी देते हो वह सजदा है, जब तुम सब्र करते हो वह सजदा है, जब तुम शुक्र करते हो वह सजदा है। सजदा ज़मीन पर झुकना नहीं, दिल को सीधा करना है। आखिरी एहसास जब इंसान दिल से सजदा करता है तो उसे यह एहसास होता है वह अकेला नहीं है, वह कमज़ोर नहीं है, वह बेकार नहीं है, वह सुना जा रहा है, वह समझा जा रहा है, वह संभाला जा रहा है। आज जब सजदा करो तो यह मत सोचो कि तुम क्या मांगोगे, यह सोचो कि तुम क्या बनोगे और दिल से कहो, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मेरा दिल हर हाल में तुझ पर राजी रहे और मेरी रूह हर सजदे में आज़ाद होती रहे। अब यह सफ़र उस गहराई में उतर चुका है जहाँ सजदा सिर्फ एक अमल नहीं, एक पहचान बन जाता है। अब इसे और महसूस करते हैं ताकि सजदा तुम्हारी रूह की आवाज़ बन जाए। 26 सजदा। खामोश गवाही। हर सजदा एक गवाही है। गवाही इस बात की कि तुमने दुनिया से ऊपर अपने रब को चुना। जब माथा ज़मीन को छूता है तो दिल यह कहता है, मैं तेरे सामने झुकता हूँ क्योंकि तू ही असली सहारा है। यह गवाही शब्दों से नहीं, एहसास से लिखी जाती है। 27 सजदा। बेचैनी का इलाज। कभी दिल बिना वजह बेचैन होता है, सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। सजदा उस खालीपन को भर देता है। जब तुम झुकते हो तो तुम्हें एहसास होता है तुम्हारा वजूद किसी मकसद से है, जैसा कि कुरान इंसान को याद दिलाता है कि वह बेकार नहीं बनाया गया। सजदा उसी याद का जिंदा लम्हा है। 28 सजदा। ताकत का स्रोत। दुनिया ताकत को बाहरी चीज़ों से जोड़ती है, माल, ओहदा, भीड़, लेकिन असली ताकत अंदर से आती है। सजदा इंसान को यह ताकत देता है कि वह अकेले भी सही रास्ता चुन सके, वह सच के साथ खड़ा रह सके, वह गलत से इनकार कर सके, क्योंकि उसका सहारा लोगों की भीड़ नहीं, उसका रब है। 29 सजदा। रूह की सफाई। जैसे पानी शरीर को साफ करता है वैसे सजदा रूह को साफ करता है। हर झुकना एक परत हटाता है, घमंड की, नफरत की, जलन की, लालच की। धीरे धीरे दिल हल्का होता जाता है और हल्का दिल ही असली आज़ादी का स्वाद चखता है। 30 सजदा। मंजिल नहीं, सफ़र। सजदा एक बार का एहसास नहीं, हर दिन का सफ़र है। कभी सजदा आंसुओं से भरा होगा, कभी शुक्र से भरा होगा, कभी खामोशी से भरा होगा, लेकिन हर बार वह तुम्हें थोड़ा और करीब ले जाएगा उस सुकून के जो दुनिया नहीं दे सकती। सजदा। जीने का अंदाज। जब सजदा दिल में उतर जाए तो इंसान बदल जाता है। वह जल्दी नाराज़ नहीं होता ही होता, वह जल्दी घमंड नहीं करता, वह जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है उसका रिश्ता ऊपर से जुड़ा है। आखिरी रोशनी। सजदा तुम्हें छोटा नहीं करता, तुम्हें असली बनाता है। तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें दुनिया से भागने नहीं देता, तुम्हें दुनिया का सामना करना सिखाता है। आज जब सजदा करो तो दिल से करो, ऐसा करो कि तुम्हारी रूह भी झुक जाए और कहो, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मेरा हर फैसला तेरी रजा के करीब हो और मेरा हर सजदा मुझे और सच्चा बना दे। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगी, एक नूर बन जाएगी।